हेलो प्यारे बच्चों। आज हम इस क्लास में आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जो फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के पूरे फॉर्मूला कंप्लीट कर ले, जिससे कि कल से अब हम यहाँ पर बच्चों आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर सीबीएसई 2025 के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों उसके लिए आपको यू हैव टू ज्वाइन द चैनल। ओके ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो सपोज इट इज अ ट्रायंगल ABC where angle B is the right angle and theta is here. So you know that when theta is here, so just opposite side is known as perpendicular. So in this figure, if theta is here, so AB will be the your perpendicular and it will be base, and just opposite to 90 degrees known as hypotenuse. Okay, this just opposite to 90 degree is known as hypotenuse. बच्चों सपोज करो अगर थीटा यहाँ पे आ गया, सपोज इफ थीटा इज हियर, सपोज ओके, देन योर परपेंडिकुलर विल बी दिस साइड, इट विल बी योर परपेंडिकुलर। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा जब थीटा एंगल ए में आ चुका है तब। ओके, बाकी हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अभी हम यहाँ पे थीटा को लेट करके चल रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? यू नो दैट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा को लेट किया हुआ है। ओके, सो साइन थीटा, ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। इसका परपेंडिकुलर ये है ए बी एंड इट इज ए सी। Next thing, cos theta. Okay, so in cos theta, BC means base upon hypotenuse. So here in this triangle, whatever I have written, it is according to the this triangle. Okay, so BC upon AC, base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base. So according to this figure, this is your perpendicular and this is your base. So AB upon BC. Now sin theta, sin theta, cos theta, tan theta is done. Now cosec theta. Cosec theta is what? Hypotenuse upon perpendicular. So it in this figure, hypotenuse is AC, and this is your AB is the perpendicular. Okay, and sec theta is equal to AC upon BC. Suppose अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, आप फिर से ड्रॉ कर लो, बी इज ए एंड सी, हमारा भी थीटा हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू बेस, सेक थीटा इज इक्वल टू hypotenuse upon base, so AC upon BC, and cot theta is equal to base upon perpendicular, so BC upon AB. Now let's go some other formula, reciprocal relationship of trigonometry ratio. इस क्लास में हम सबके सब पूरे के पूरे फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, ओके, एंड all the concepts. So reciprocal relationship of trigonometry ratios. What are the relationship? You know that sin theta is the opposite of cosec theta. So sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Tan theta is equal to 1 upon cot theta. And sec theta is equal to 1 upon cos theta. And cos theta is equal to 1 upon sec theta. And cot theta equal to 1 upon tan theta. And cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Okay, so what is the reciprocal of the sin theta? Cosec theta. Reciprocal of cos theta is sec theta. Reciprocal of tan theta is cot theta, and vice versa also. आप ऐसे याद रख सकते हैं. Okay. Second, there are some more means ratios. We know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta, and cot theta equal to cos theta upon sin theta. How? So sin theta, you know that perpendicular upon hypotenuse, and cos theta is equal to base upon hypotenuse. So in both cases, hypotenuse cancel, perpendicular upon base, which is tan theta. So that's why tan theta is equal to, we can write sin theta upon cos theta. Second, cot theta. So cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Cos theta is equal to, we know that base upon hypotenuse,
and sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. It both will cancel. So base upon perpendicular, it means it is cot theta. Getting okay. Next, in this chapter we have some trigonometry identities. Okay, like there are three major identities which are sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये तीन आपको अच्छे से याद रखनी है, बाकी आप इनसे फॉर्म कर सकते हैं. ओके, सेकेंड इज cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, and third is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ये इन्हीं से ही हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है. बच्चों अगर किसी को आपको ये सीट चाहिए होगी, फॉर्मूला सीट, तो मैंने अपने इसमें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से अपलोड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. और ये मैंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. cosec थीटा 1 प्लस cot थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके. हाँ. See trigonometry ratios of some specific angles. एंगल 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2, एंड 45 पर 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1. बहुत से बच्चों को ये याद नहीं होता है. बच्चों ये बहुत ही इजी है. आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करना है. उसके बाद साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखो कॉस थीटा में जस्ट अब यहाँ से आपको उल्टा करके लिख देना है ना, फ्रॉम अपोजिट. 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड 30 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, और कॉस 60 हो जाएगा 1/2 0. यहाँ से उल्टा करके ना, ये आप ऐसे करके लिख देंगे. कॉस में मतलब ये 0 डिग्री है, ये 0 है, देन 30 फॉर कॉस. फिर टेन थीटा में क्या होता है, अभी हमने देखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 45 1/√2 अपॉन 1/2 1, एंड cos 60 में tan 60 क्या हो जाएगा √3, 90 डिग्री 1 अपॉन 0. सो नॉट डिफाइंड. वेन एवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, it comes not defined. Okay, always remember, it will work in your math exam. Not defined. Okay. नेक्स्ट cosec थीटा इज नॉट डिफाइंड. अब cosec थीटा आपको पता है कि ये किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है. तो साइन जैसे कि यहाँ पे 0 था, तो 0/any नंबर विल कम. ओके, 1/0, 2/any, so that's why it is not defined. and 1/2 का cosec थीटा में आपको क्या करना है बच्चों, साइन की वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है. रेसिप्रोकल. ओके, 2, एंड इट विल बी √2, 2/√3, इट विल बी 1. सेक थीटा में ये हो जाएगा आपका. अब cos थीटा की वैल्यूज को आपको रेसिप्रोकल करना है. 1, 2/√3, यहाँ पे √2, फिर ये 2, और ये नॉट डिफाइंड. ठीक है. अब आप cot थीटा आया, तो cot थीटा में आप क्या करेंगे, आप जस्ट आप रेसिप्रोकल कर देंगे tan थीटा का. तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, फिर यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड आफ्टर दैट हियर रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज 0. Some application of trigonometry. Here we have to use the ratios accordingly, which side you have to find it. देखो इसमें आपको एक चीज और याद रखना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. वेन एवर इट इज सेइंग एंगल ऑफ एलिवेशन, it means angle is forming here. Okay, suppose theta in most of the cases here. So this is your angle of elevation from where any observer is observing the things. It is called angle of elevation. Okay, next thing, angle of depression. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखो क्या होगा कि यहाँ से बच्चे हैं ना, यहाँ पे सपोज आप अपने घर के किसी बहुत ही हाइट पर खड़े हुए हो, आप अपनी बालकनी पे, वहां से आप देख रहे हैं कोई एंगल बन रहा है थीटा. ठीक है. सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन.
okay, and here this is theta, this is theta. So this and this theta will equal. Why? Because this side, imaginary side which we have drawn, and this both will parallel, and due to the alternate interior angles, this both will equal, then you can solve it. So I think students, you are getting very well what is angle of elevation and angle of depression. Next thing, now circles. Theorem number 10.1. A tangent, here in circles, we will do the questions in like most expected series, in most expected series. Okay, here just we are doing the basic theorems. Okay, theorem number 10.1. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Like what it is saying, a tangent to a circle. So tangent means which touches the circle in any one point. Okay, so here suppose xy is touching, it is in one point, is perpendicular to the radius through the point of contact. So it is perpendicular to through the point of contact. Suppose here any side is there, let it is OP, here OP. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point, means it is forming the 90-degree angle. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP is perpendicular to XY. ओके, हाँ नेक्स्ट बच्चों चलते हैं इसमें थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम 10.2. The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. Like suppose here one circle is there with center O, and this AB and AC are two tangents drawn through a one external point. So AB will equal to the AC. This we know that how to prove it. Okay, we will prove in our means most expected series class. Here just we are covering the concept and theorems and formula. Now next one, area related to circle. So area related to सर्कल, पहले तो बच्चों देखो यहाँ पे हम सेक्टर्स को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज सेक्टर? सो सपोज यू हैव अ सर्कल एंड विद सेंटर ओ. Sector, the portion or part of circular region enclosed by two corresponding arc, means ये दो ये radius by two radii and corresponding arc. This is the corresponding arc. So this area is known as sector. और ये आपका मेजर सेक्टर. ठीक है, ये जो स्मॉलर एरिया है दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर. OAPB and OAQB is the major sector. So I think you all are getting. You can comment it. Okay, there is no problem. बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि what's the problem. हाँ, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, स्मॉलर पार्ट, ये जो छोटा पार्ट है ना, विथ टू रेडी एंड वन आर्क, स्मॉलर आर्क, इट इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर. और ये जो है आपका बड़ा वाला एरिया जो है, बिगर एरिया, इट इज नोन एज मेजर सेक्टर. नेक्स्ट थिंग, सेगमेंट. ओके, so what is segment? Circular region which is enclosed by a chord and the arc. Here AB is the chord and this portion is a arc. APB is the arc. So area enclosed by the corresponding arc and chord is called the segment. So this smaller area is known as minor segment. This smaller area is the minor segment. और ये जो बड़ा वाला एरिया है ये होता है आपका मेजर सेगमेंट. ओके, देखो यहाँ पे ऑलरेडी इट इज गिवन दैट APB is called the minor segment and AQB is called the major segment. देखो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स, है ना. देखिए आप, इफ अ सर्कल रेडियस इज r, सो डायमीटर d इज इक्वल टू 2r. वी नो दैट डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ रेडियस. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 2 पाई आर अपॉन 2. सेमी सर्कल, सो सेमी सर्कल है तो हम उसको आधा कर देंगे. सरकमफेरेंस है और पेरीमीटर बोथ आर सेम थिंग. ओके, सो इट इज पाई आर. बच्चों ये जो पूरी वीडियोस मींस ये पूरी क्लासेस हमारी चल रही हैं, ये मैंने एक प्ले लिस्ट पे यहाँ पे
ऐड कर दी है पूरी आपके लिए, है ना, फॉर लाइक इट विल बी नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द वीडियोस। ये आपको मतलब ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ्स क्लास 10th इन 10 days, ओके, एंड स्कोर 70+ मार्क्स, यू कैन स्कोर इट इजली। अभी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आने वाला हूँ बच्चों, क्वेश्चंस की, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड, ओके। सो आप उसको मीन्स आपको अटेंड, यू हैव टू अटेंड दैट क्लासेस, फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू लाइक एंड यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ, सेमी सर्कल, हेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसको हाफ कर दिया हमने। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स कोई एक फोर सर्कल को अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से हम उसका जो एक पोर्शन है, कोई भी एक पोर्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, ओके। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 2 पाई आर, कितने तो उसने रिवॉल्यूशन किए, है ना, सर्कल्स ने, मतलब कोई पर्सन है ऐसे यहाँ पे सपोज खड़ा हुआ है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की फर्स्ट ये, फिर उसके एक बार का जो सरकमफेरेंस होगा ईच टाइम वी विल डिवाइड बाय दैट। सो आपको पता चल जाएगा उससे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? ठीक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके 10th क्लास के, है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बेसिक फॉर्मूले थे, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ, और आप एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट्स, सो टिल हियर नो डाउट, ओके। ये पूरे फॉर्मूला you will write it one time in your notebook, okay, so maybe it will be more better for you, हाँ। now surface area and volume. So in surface area volume we have in syllabus cuboid, cube, cylinder, cone and sphere, okay, so cuboid, now in cuboid, क्यूबॉइड आपको पता है कि जब हम दो रेक्टेंगल्स को अगर हम ओवरलैप करते हैं लाइक दिस टाइप, 2 रेक्टेंगल्स, ओके, हियर लाइक दिस टाइप, अगर हम लोग 2 रेक्टेंगल्स को ओवरलैप करते हैं, ये वेट सी, यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग की हुई है ऑलरेडी, एक रेक्टेंगल ये, सेकंड ये, फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका क्यूबॉइड, ओके। क्यूबॉइड में ईच साइड इज डिफरेंट। सो इसका जो देखो ऐसे बना सकते हैं इसको, इट इज नॉट वेरी बिग डील। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल पहले बना लिए, फिर ऐसे ही सेम साइज का एक और रेक्टेंगल बना दिए। बच्चों इसको अच्छे से भी ड्रा कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हमारा एग्जाम ये, तो अभी क्यूबॉइड बनाना नहीं सीखना है हमको ना। एल हो गया ये आपका, और ये बी हो गया, और ये एच हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो सी एस ए, और सी एस ए मीन्स कर्व सरफेस एरिया, इट इज आल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। सो क्यूबॉइड का क्या होता है? 2l+b इंटू 2l+b इन ब्रैकेट इंटू एच, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे बच्चों, है ना। टी एस ए 2 इन ब्रैकेट LB+BH+HL. If 5 surfaces are included, like sometime you have to find the area of the water tank or something which is covered from the 5 places, but it is not covered from upper part. Okay, so on that case, and we have to paint suppose any cuboidal room. So on that case also, what we have to do, we don't need means we don't need to. Paint the floor. So on that case also we have to apply the this formula to 5 surfaces, 2l+b into h plus lb। जो आपको पूरे वीडियो मीन्स आपको पूरा देखना है सीक्वेंस में, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। और वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, और उसके बाद आप डायगोनल कैसे निकालेंगे? अभी एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में क्लास 10th में, फाइंड द डायगोनल। तो डायगोनल इज √/L² प्लस b² प्लस h² फॉर क्यूबॉइड। Now next thing is cube. So in cube
क्या करना है बच्चों आपको, देखो आप स्क्वायर बनाना है अब आपको, है ना, स्क्वायर टू सेम साइज स्क्वायर्स, बस बना दिया, ऐसे स्क्वायर्स बनाना है आपको, ठीक है। और इनको ऐड, सो स्क्वायर्स के क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, सो इसके भी ऑल साइड्स इक्वल होंगे। सी एस ए और एल एस ए क्या होता है क्यूब का, 4a² टी एस ए 6a², ओके। If five surfaces are included, so 5a². Now you can leave like a bottom or a upper part, any, like it is what it is asking in the question. It depends on that. Volume of cube, volume of cube is a cube. And if it will say find the diagonal, ये बहुत ही important thing है बच्चों, diagonal of cuboid and diagonal of cube, very important, okay, very important, आपको याद रखना है, a√3 होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सिलेंडर। अब चलो सिलेंडर की साइड चलते हैं ना। सिलेंडर, व्हाट इज सिलेंडर इन सिंपल फॉर्म। सिलेंडर क्या होता है बच्चों, अगर हम किसी, सपोज करो आपके पास कोई रेक्टेंगल था, आपने उसको एक कर्व सीट से आपने उसको ऐसे कर्व बना दिया, तो ये क्या हो जाता है, सिलेंडर बन जाता है। देखो जैसे ऐसे, एक ये आपका रेक्टेंगल, नीचे से एक सर्कल हमने बेस में लगा दिया और एक अपर पार्ट में, ये हो गया आपका सिलेंडर। इसकी रेडियस क्या है, आर, हाइट, एंड यहाँ पे रेडियस आर, सो बेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, आपका πr²। और सी एस ए और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 2πr/h। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा ना, सरकमफेरेंस इनटू हाइट, टी एस ए 2πr/h। और फिर इसमें दो सर्कल्स हैं, एक बॉटम में एक अपर में, दिस वन, है ना, ये जो आपका है ये दिस पार्ट और दिस सर्कल, ये दोनों आप ऐड कर दोगे। बहुत ही बेसिक जा रहे हैं बच्चे हम, है ना, बहुत ही बेसिक, मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बेसिक स्टूडेंट्स आल्सो as well as standard students also, because without formula nothing। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाए 2πr/h+r, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। कोन, अब कोन आपको पता ही है, आपकी जोकर की जो कैप है दैट इज नोन एज कोन, और कोन आइसक्रीम भी होती है, ठीक है। तो कोन में ये जो हाइट है आपकी, इट इज नोन एज एच, ये आपकी होगी हाइट, और इस हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट, ये हो गई रेडियस ऑफ। sometime if radius value is given and height value is given, slant height is not given, so if any one value is not given, so you can use this formula, l square is equal to r² plus h square, and you can find out that value। सी एस ए और एल एस ए ऑफ कौन क्या होता है बच्चों, πr/l। टी एस ए क्या हो जाएगा आपका, πr/l प्लस πr², ठीक है। तो इन दोनों में πr कॉमन हो गया, अंदर में क्या बच जाएगा, l प्लस r। फिर उसके बाद वॉल्यूम में चलो 1/3 πr²h, ओके। नाउ स्फीयर, स्फीयर की साइड चलते हैं हम लोग। तो स्फीयर मतलब क्या है, आपका फुटबॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गई, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं तो आपके स्फीयर के। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों स्फीयर का, 4πr², क्या होता है, 4πr²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 4/3 πr³ अभी पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं आफ्टर दिस क्लास, ओके। जस्ट हियर वी आर रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज, होल फॉर्मूला। हेमीस्फीयर और सेमी स्फीयर, हेमीस्फीयर और सेमी स्फीयर। सो इसके क्या होते हैं बच्चों फॉर्मूले, फॉर्मूले तो बहुत बच्चों को याद भी होंगे, कुछ कुछ को जो याद नहीं है उनको याद कर लेना है, ओके। ये हो गया आपका हेमीस्फीयर बाउल, और इस पे ऊपर से ये देखो, ये ऐसा एक बाउल हो गया, इस पे मैंने ऊपर से एक और सर्कल लगा दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका, टी एस ए हो गया टोटल, है ना। ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, आर है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस। तो बेस एरिया क्या होता है इसका भी, हेमीस्फीयर का πr²। और सी एस ए और एल एस ए क्या होता है बच्चों, 2πr²। टी एस ए क्या होता है, 3πr²। वाई आई एम गोइंग टू दिस मच फास्ट, बिकॉज दीज आर फॉर्मूला मेनी स्टूडेंट्स आर नोइंग, सो जस्ट हमको एक बार गो थ्रू देखना है, और आपको बहुत स्पीड से याद रखनी है बच्चे हर चीजें, मतलब आपको 3 आवर्स के अंदर सब याद आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट इज नोन एज प्रेजेंट ऑफ माइंड। वॉल्यूम इज 2/3 πr³। और ऐसे बच्चों बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने आप बहुत ही बेसिक से, फ्रॉम बेसिक
सेम है आपके हर एक चीज यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, तो आप उसको वॉच करिए, आपको डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हेमी स्क्वायर। ओके, आप स्टैटिक्स में चलते हैं, तो स्टैटिक्स में देखो, स्टैटिक्स में हमारे पास मीन है, मोड है और मीडियन है। तो मीन, मीन अगर सिंपल नंबर वाला आया है ना, मीन ये 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये वाला है ना, इस फॉर्मूले से बनेगा उसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। ठीक, नेक्स्ट मीन फॉर ग्रुप डाटा, ये समझ में आ गया ना बच्चों आपको अच्छे से, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर्स। ओके, सो एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, उसमें हम करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे सब चीज। ठीक है, मीन फॉर ग्रुप डाटा, मीन फॉर ग्रुप डाटा, तो अब यहाँ पे मीन फॉर ग्रुप डाटा हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स आर गिवन, वन इज डायरेक्ट मेथड। सो मीन एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्लास कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो जैसे कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, सो क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स आई बोल रहे हैं ना, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इधर देख लो, क्लास मार्क इज इक्वल टू, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास डिवाइडेड बाई 2, दिस इज क्लास मार्क। तो यहाँ से सपोज 0 से 10 दिया, सो 0 + 10 10 10/2 5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 10 to 20 दिया, तो 20 + 10 30 30/2 15, उसके बाद आगे आप क्या निकालते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो, और फिर उसके बाद आगे एफ आई एक्स आई करके हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, अच्छा अच्छे से बता दें, ओके सी यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया। ओके, फिर उसका यहाँ पे क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, फिर यहाँ पे हो गए डायरेक्ट मेथड के लिए आपका एफ आई, और यहाँ पे फिर लास्ट में हो जाएगा एफ आई एक्स आई। इसमें अगर आपको अभी अज्यूम मीन मेथड आएगा तो उसमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, सेम थिंग फॉर द स्टेप डिविएशन मेथड में यू आई निकालना होता है हमको। ओके, डी आई अपॉन एच, क्लास इंटरवल ऑफ 50 to 75, जैसे लोअर लिमिट 50 है, अपर लिमिट 75, क्लास साइज क्या हो जाएगी 75 से 50, तो इसकी साइज क्या आ गई 75 माइनस 50 25। ओके, क्लास मार्क अभी मैंने फॉर्मूला बताया, अज्यूम मीन मेथड, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर ए इज द अज्यूम मीन। डी आई कैसे निकालते हैं, इसमें एक कॉलम आएगा एक्स आई माइनस ए, so a is assumed mean। okay, स्टेप डिविएशन मेथड, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, बहुत फास्ट से करना है बच्चों, फॉर्मूले बस कर रहे हैं हम लोग, है ना, एच इज इक्वल टू क्लास साइज यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, फॉर्मूला आपको जल्दी आ जाएगा तभी तो, देन यू विल एबल टू सॉल्व द होल एमसीक्यूज इन 15 मिनट्स, है ना, इसलिए फटाफट वही करना है। मोड, मोड इज व्हाट, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, ये इसमें भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको वैल्यूज दे देंगी और पूछेगा व्हाट इज द मोड, सो आपको मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी देखना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, जैसे ग्रुप डाटा क्लास इंटरवल वगैरह दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में आपको एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मोड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्लास इंटरवल में आप फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो जो क्लास आएगा दैट विल बी योर क्लास इंटरवल ले लेंगे आप, है ना, आपको मॉड क्लास हो जाएगा वो आपका, वो वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मॉड क्लास। तो वो आपकी मॉड क्लास या मॉडल क्लास, तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल हो गया, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है F1, ठीक है, वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उससे पहले वाला, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H क्या हो जाएगा आपका, क्लास
क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब जितने भी, जैसे 0 से 10 है तो 10, अगर 10 to 25 है तो 15। ओके, इस टाइप से हम उसको एडजस्ट करके देख लेंगे कि क्या है। बच्चों अब देखिए, आप यहाँ पे मीडियन है ना, मीडियन का क्या है, फॉर ग्रुप डाटा, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, सो मीडियन इज इक्वल टू n/2 with term plus n/2 plus 1 divided by 2, these number terms, not these, okay, these number terms, and then divided by 2। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, ओके। इफ एन इज ऑड, सो देन मीडियन n+1/2 विथ टर्म, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, लाइक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, देन यू विल ऐड, देन सेकंड, है ना। अभी हम करेंगे बच्चों, जस्ट यहाँ पे एक बार फॉर्मूला देख लीजिए पूरे। ग्रुप डाटा मीडियन l+n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू एच। नोट फॉर फाइंडिंग द मीडियन, अब यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको क्या करना है, n/2 फाइंड करना है, देन आप लोकेट कर सकते हैं क्लास हु cf इज ग्रेटर, ओके, हु सी एफ इज ग्रेटर और नियरर, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो उसमें आपको ग्रेटर और नियरर वन लेनी है, ग्रेटर और नियरर, ओके, आई एम अगेन सेइंग ग्रेटर और नियरर वन। इन दिस मीडियन एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, आपको मीडियन क्लास n/2 से देखनी है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा आ रहा है, उस क्लास का इंटरवल आपको लेना है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो उससे ग्रेटर और नियर वाला लेना है, ठीक है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, एफ frequency of model class, h is size of class interval, relationship between mean mode and median, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसको आप याद रखोगे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यहाँ से एक एक ना मीन्स एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एमसीक्यूज में आपको मिल सकता है, और इसके बाद आपको इसका डिटेल में भी 5 मार्क्स में भी इसका यूज होता है। सो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ओके। सो स्टूडेंट्स हम ऑलमोस्ट लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं, आप लोग बने रहिए, ओके। देखते बच्चों, स्टे ट्यून्ड रहना है ना, अभी एग्जाम का टाइम है, सो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 तो हो सकती है, बट 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, इम्पॉसिबल इवेंट 0, ओके। PE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला। बच्चों इसमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आता है, अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या केस स्टडी में, तो एक बार एटलीस्ट वन टाइम यू हैव टू राइट इट दिस फॉर्मूला इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या आते हैं, टोटल 4 आउटकम्स आते हैं। आउटकम्स में क्या क्या हो सकता है, आपका हेड हेड हो सकता है, हेड टेल एंड टेल, हेड और टेल टेल। इफ यू आर टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो टोटल आउटकम्स आपको याद रखना है कितने होते हैं, 12। हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, टेल टेल, और टेल हेड टेल और टेल टेल टेल, ओके। इस टाइप से आपको याद रखना है बच्चों, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है आपको, ये अपने आप बन जाता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, है ना। जैसे 3 बार आपने हेड हेड लिखा, फिर हेड टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टी 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 टेल टेल टेल, ओके। अब देखो, इसमें डेक कार्ड्स और प्लेइंग कार्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बार बार क्वेश्चन इसमें आते हैं यहाँ से। इसमें क्या है बच्चों, आपको याद क्या रखना है कि इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ओके। ये जो सीट है ये आपको अब टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको। अब 26 जो ब्लैक कार्ड्स है ना, इनमें बच्चों क्या होते हैं, देखो स्पेड्स होते हैं 13, और 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स। टोटल 4 ग्रुप्स आर देयर, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। रेड, रेड में क्या होता है, हार्ट होता है और डायमंड होते हैं सब। इन ईच एंड एवरी ग्रुप हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, 13 कार्ड्स, 13 13। मैं बहुत स्पीड से रिवीजन करा रहा हूँ, जो है ना आपको याद रखना है, डोंट फॉरगेट, हाँ। तो अब देखो, ये 13 जो कार्ड होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, तो फर्स्ट तो एस हो गया, टू, और फिर टू से, फ्रॉम 2 to
टिल 10, तो दो 2 से लेके 10 तक, और एस हो गया, ठीक है। फिर किंग, क्वीन और जैक। इसमें जो किंग, क्वीन और जैक है, ये दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फेस कार्ड। किंग, क्वीन और जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। अब सपोज आपने कोई थ्रो किया है डाइस, 6 आउटकम्स, है ना, किसी एक ही डाइस को आपने थ्रो किया, तो उसमें तो 6 ही आउटकम होंगे, क्या आउटकम, 1 2 3 4 5 6, है ना। और बट व्हेन वी आर थ्रोइंग द 2 डाइस, सो उसमें 36 आउटकम्स होते हैं। ये आपको पास है ना, 1 2 3 4 5 6। जैसे फर्स्ट वाला आई एम एक्सप्लेन दैट, फर्स्ट वाला ट्राई टू लर्न, देन रेस्ट यू कैन डू इट। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, okay. This time we can do other also. Some important things to remember. We are just going to complete our this formula series and concept series. From tomorrow we will start the most expected questions. So the students, do not forget to subscribe and share with your friends. Okay. Hmm. So complementary angles, sum of two angles is 90 degrees. Sum of two angles, ये आपको याद रखना है, चैप्टर 3 में यूज हो सकता है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सम टाइम जैसे कि बोर्ड एग्जाम में देखा है हमने कि बहुत सब बार बहुत इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है या 10th में पढ़ा है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आप इनको भी एक बार याद कर लोगे। ए टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ए टू पावर एम इंटू एन क्या हो जाता है, ए टू पावर एम इंटू एन। बच्चों, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके। इफ एनीवेयर आई हैव सेड टू याद कर लोगे, इट डज नॉट मीन यू हैव टू मेमोराइज इट, ओके। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं बच्चों, तब तो आपका बहुत अच्छा डेडिकेशन है और आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है, ओके। ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एन, ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर एन, ए टू पावर एम माइनस एन, और ए टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू पावर एन। बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ आपको बताया तो नहीं है, मतलब लाइक हाउ की फॉर्मूलेस में कैसे एग्जांपल, क्योंकि बच्चों मैं अभी इसके बाद जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेके आना हो ना आपके क्लास की, ठीक है। मैं क्लास लेके आने वाले हैं, जो कि आप 10 डेज में पूरे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो बच्चों, डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट ट्राई टू see and try to practice it. Self practice is very important, और बच्चों बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, ओके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर, थैंक यू, ओके।